Hello students. Okay, hope you all are fine at home. Now, till last lecture, we have seen the modes of nutrition, types of nutrition, nutrition in plants and nutrition in amoeba, and also the outline of the nutrition in human beings. Now, today we will see the digestion in human. I have already told you that the complete nutritional process in any animal, higher animal, is completed into few steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and ejection. These 5 processes are there. So for today we will see only ingestion and digestion. Okay. Now for digestion in human beings, there are some major organs like mouth, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. This is the complete alimentary canal. I told you why we are calling it canal, because it is starting from mouth and ending to large intestine. एनस तक वो पूरा एक complete passage of food बनता है, कहीं पर भी break नहीं हो रहा है. That's why we are calling it canal. And the accessory organs are liver, gallbladder and pancreas. Liver, gallbladder and pancreas क्या कर रहे हैं? Digestive juices secrete करते हैं जो इन सारी फूड को डाइजेस्ट करने में, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है. ऑल्सो वी हैव सीन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल सी कि कौन कौन से पार्ट में केमिकल डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर केमिकल मैकेनिकल दोनों डाइजेशंस होते हैं, एंड सम पार्ट्स आर देयर वेयर देयर इज़ नो डाइजेशन. सो आई रिफर दैट यू कीप योर पेन एंड नोटबुक ओपन विथ यू एंड राइट इट डाउन वॉट एवर आई एम सेइंग. ओके. नाउ first part of our digestive system is buccal cavity. Now our buccal cavity, you can see on your screen, is consisting of teeth, tongue. It is a slit of lips. Transverse slit of lips होती है. lips खुलेंगे तो teeth है, tongue है, and also the salivary glands are present. Okay, inside the buccal cavity the salivary glands are present. I will share you the PDF, so it will be having all the diagrams and everything. Okay, so there are 3 pairs of salivary glands in our buccal cavity. There are 3 pairs of salivary glands. 3 pairs. Okay, 3 pairs of salivary gland, then tongue, then teeth. Okay, now we will see what is the quality, the characteristics of teeth in human. What is the characteristics of teeth? We all are knowing that we are having 32 teeth. Okay, and all these 32 teeth are not same. ये सारे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. इसमें इंसिजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलार्स होते हैं और मोलार्स होते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन माउथ. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हेट्रोडेंट. हेट्रोडेंट मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. एक जैसे टीथ ना होकर कैसे होना, अलग अलग टीथ होना. वी आर कॉलिंग इट हेट्रोडेंट. इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. इंसिजर्स और कैनाइंस जो आगे के टीथ होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू टियर द फूड. ओके, and the premolars are used to chew the food. You can see on your screen, incisors help to cut the food, canines help to grasp the food. grasp मतलब फूड को पकड़े रखने के लिए हेल्प करते हैं. प्रीमोलार्स फूड को क्रश और टीयर करने के लिए हेल्प करते हैं, और मोलार्स उसको ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं, च्यू करने के लिए. सो यू कैन सी वी आर हैविंग all the 4 types of teeth in our mouth. That's why we are called it heterodent kind of teeth. Okay, now next one is after teeth it comes is the pharynx. After teeth, here comes the pharynx. Now what is pharynx? Pharynx is actually the common opening. If you can see here, the soft palate, tongue, epiglottis. जो epiglottis आप देख रहे हो, epiglottis is the opening जहाँ से आपका food enter होगा esophagus में. Mouth के बाद कहाँ जाएगा? Esophagus में जाएगा. और pharynx क्या है यहाँ पर? Pharynx is actually the opening जहाँ से आपका esophagus और वोकल कॉर्ड मतलब आपका विंड पाइप दोनों ही ओपन होते हैं. अब ईसोफेगस की ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं और विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं. ग्लोटिस इज़ ऑलवेज ओपन क्योंकि आप हमेशा क्या करते रहते हो? ब्रीथ करते रहते हो. बट गलेट इज़ नॉट ऑलवेज ओपन. जब आप कुछ खा रहे हो तभी आपका गलेट ओपन रहता है, अदरवाइज इट इज़ क्लोज. वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. इसीलिए हम बोलते हैं अब जब आपको बोलना है, यू कैन सी हियर वोकल कॉर्ड इज ऑल्सो देयर. सो वोकल कॉर्ड तभी काम करेगी जब आपका ग्लोटिस ओपन रहेगा, विंड पाइप ओपन रहेगा. तो बोलते वक्त आपको सांस लेना ज़रूरी है. इसलिए आप जब इसलिए बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो तब बोलना नहीं चाहिए. दैट
अगर समटाइम्स कि बहुत सी बार फूड गलती से विंड पाइप में चला जाता है, ओके, एंड दैट कॉजेज प्रॉब्लम. नाउ देन आफ्टर दैट इट विल कम ईसोफेगस. उसके बाद फूड कहाँ जाने वाला है, हमारा ईसोफेगस में जाने वाला है. ईसोफेगस, इन लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू इट इज़ हैविंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अब आप देखो ईसोफेगस की, एक तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरफ से रिलैक्स होता है. और बोलस या काइम जो फूड है, अब उसको हम फूड नहीं बोलेंगे, अब हम उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे या बोलस बोलेंगे. तो वो आगे कैसे पुश होगा, क्योंकि बार बार क्या होगा, ईसोफेगस एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड आगे पुश होगा और आगे से वो रिलैक्स होगा. इस तरीके से ईसोफेगस क्या करता है, फूड को फॉरवर्ड पुश करता है. म्यूकस होता है इनर लाइनिंग में, ईसोफेगस की म्यूकस होता है जो उसको क्या करता है, फूड को स्लिपरी बनाता है. एंड इट हेल्प्स टू रीच द फूड टू द स्टमक. ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप होता है जो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है. हियर यू कैन सी इजीली दिस इज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. सी हाउ द बोलस इज कमिंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज गोइंग टू द स्टमक. ओके, now the next part is stomach. Stomach is a J shape organ. स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है जहाँ पर फूड का मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होगा. ठीक, कैसे होगा वो हम देखते हैं. नाउ द एंजाइम्स इन द स्टमक. कौन कौन से एंजाइम्स स्टमक में, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है. दिस थ्री आर द मेन थिंग्स इन द स्टमक, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. नाउ आफ्टर स्टमक द फूड विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, बीच में पैंक्रियाज होता है, लीवर होता है जहाँ से जूस आकर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिक्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स अवर एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी माउथ. आई विल यूज़ द एब्रीविएशंस हियर. ओके, माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है और साथ में केमिकल डाइजेशन भी होता है. मैकेनिकल डाइजेशन टीथ की हेल्प से होता है, आप समझ गए हो, और केमिकल डाइजेशन सलाइवा की हेल्प से होता है. अब सलाइवा की हेल्प से कैसे केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट होती है एंजाइम अमाइलेज. ओके, देयर इज़ एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा कॉल्ड अमाइलेज. अमाइलेज क्या करेगी, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगी. नॉट कम्प्लीटली बट इट विल कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. कैसे स्टार्च को, स्टार्च इज़ अ बिग मॉलिक्यूल. ओके, स्टार्च एक शुगर का बिग मॉलिक्यूल है, वो उसको डाइसैकेराइड्स में क्या कर देती है, चेंज कर देती है. डाइसैकेराइड्स में अमाइलेज विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड्स. ओके, तो यहाँ पर माउथ में हमारा मैकेनिकल डाइजेशन भी हुआ और केमिकल डाइजेशन भी हुआ. उसके अलावा जो सलाइवा होती है वो स्मूथ करती है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था फूड को. उसके अलावा स्लीपरी बनाती है ताकि वो इजीली क्या कर सके, स्टमक तक जा सके. नाउ नेक्स्ट ईसोफेगस. ईसोफेगस में देयर इज़ नो डाइजेशन इन ईसोफेगस. किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है ईसोफेगस में. आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस. रनिंग नोट्स आप ऐसे ही बनाओगे. ईसोफेगस में किसी टाइप का डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ फूड क्या होगा, माउथ से स्टमक तक जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टमक. स्टमक बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का. क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा और केमिकल डाइजेशन भी होगा. दोनों ही डाइजेशन स्टमक में होते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है स्टमक में, आप देखो कि स्टमक पूरे टाइम चर्निंग मूवमेंट शो करता है. चर्निंग आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, जैसे चक्की चलती है वैसे चर्निंग पूरे टाइम स्टमक की जो मसल्स होती है वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. उसके अलावा स्टमक की जो वॉल्स होती है वहाँ से इतनी चीज़ें सिक्रीट होती है. एक HCl सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है और पेप्सिन सिक्रीट होता है. अब क्या काम है इन तीनों चीज़ों का, वो एक वन बाय वन देखते हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे HCl. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ HCl. HCl एक्चुअली स्टमक के pH को एसिडिक बनाता है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. दूसरा, इट किल्स द बैक्टीरिया इन द फूड. आपके फूड में जो भी बैक्टीरिया जा रहे हैं उसको कौन किल कर रहा है, HCl किल कर रहा है. ठीक है. देन थर्ड थिंग, आप अभी मैंने आपको यहाँ पर जो बताई पेप्सिन, दिस इज़ एंजाइम. ये एंजाइम एक्चुअली क्या होती है, पेप्सिनोजन बनकर रिलीज होती है स्टमक में. वेट सॉरी, दिस एंजाइम इज रिलीज एज पेप्सिनोजन. और पेप्सिनोजन एक्चुअली क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम का. इट इज़ इनएक्टिव.
और ये फॉर्म सिर्फ किसके प्रेजेंस में एक्टिव होगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl क्या करेगा, जैसे पेप्सिनोजन रिलीज हुआ अभी, ठीक है, पेप्सिनोजन रिलीज हुआ, इस पर क्या करेगा, HCl आकर वर्क करेगा और इसको क्या बना देगा, पेप्सिन बना देगा। अब आप ये ध्यान रखो, जहाँ पर भी ये जन लगा होता है मतलब कि वो क्या है, इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। और जहाँ पर पेप्सिन है, आगे कोई जन या आगे प्रो नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये कैसा फॉर्म में, एंजाइम का एक्टिव फॉर्म में। अब एंजाइम्स क्या करती है, एंजाइम्स आर एक्चुअली द बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होती है, बायोकैटलिस्ट होती है। बायोकैटलिस्ट मतलब वो रिएक्शन को जल्दी करवाती है, हेल्प करवाती है, आपके फूड को डाइजेस्ट करवाने में एंजाइम्स क्या करवाएगी, आपको हेल्प करवाएगी। नाउ बायोकैटलिस्ट वी विल डिस्कस फर्दर इन अदर चैप्टर्स, ओके। तो एंजाइम्स आपको क्या कर रही है, फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रही है। अब एक एंजाइम जो मैंने अभी बात की आपकी पेप्सिन, तो पेप्सिन एक्चुअली किस चीज़ को डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करती है, प्रोटीन्स को। आप जो प्रोटीन्स खा रहे हो तो पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन्स को हेल्प डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करेगी। कैसे, आपने जो प्रोटीन खाया है दैट इज़ अ बिग मॉलिक्यूल, एक बड़ा प्रोटीन खा रहे हो आप, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब उस प्रोटीन को पेप्सिन जब काम करेगी, कैसे पीएच पर काम करती है, एसिडिक पीएच पर काम करती है। HCl की वजह से स्टमक का पीएच क्या है, एसिडिक है। तो ये प्रोटीन क्या होगा, पेप्सिन की हेल्प से पेप्टोन्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पेप्टोन्स बन जाएंगे इसके, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज हो जाएगा और प्रोटीएज बन जाएगा। प्रोटीएज और पेप्टोन्स क्या है, प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसके अलावा स्टमक में कुछ हद तक फैट्स का डाइजेशन होता है, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, फैट्स का डाइजेशन होगा इन लिटिल अमाउंट, लिटिल डाइजेशन ऑफ फैट्स। कौन करवाएगा फैट्स का डाइजेशन, लाइपेज एंजाइम करवाएगी। लाइपेज क्या करती है, फैट्स को डाइजेस्ट करवाती है, बट इन वेरी लिटिल अमाउंट, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी, अब इसके बाद क्या होगा, फूड विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हो गया स्टमक में जितना डाइजेशन होना था प्रोटीन्स वगैरह का, अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी भी फूड इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सो व्हाट हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस आकर मिलते हैं। एक पैंक्रियाटिक जूस होता है, एक बाइल जूस होता है, और एक इंटेस्टाइन का खुद का अपना इंटेस्टाइनल जूस होता है, ओके। ये 3 जूसेस आर देयर इन द इंटेस्टाइन। ये तीनों जूसेस आकर क्या होंगे, इंटेस्टाइन में एक जगह मिक्स होंगे। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस में एक्चुअली होती है ये अमाइलेज और लाइपेज वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा पेप्सिन भी होती है, जो क्या करती है, बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करती है। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच आपका अल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। स्टमक में आपका पीएच क्या था, एसिडिक था, HCl की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच क्या होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच आपका अल्कलाइन होना चाहिए। तो कैसे होगा अल्कलाइन, क्योंकि फूड तो एसिडिक पीएच से आया है। फॉर दिस पर्पस बाइल जूस इज वर्किंग। बाइल जूस क्या कर रहा है, बाइल जूस एक्चुअली आपके स्टमक के पीएच को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिडिक से उसको क्या बना रहा है, अल्कलाइन बना रहा है। दूसरा बाइल जूस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब फैट्स के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं, तो बाइल जूस की हेल्प से क्या हो जाते हैं, बाइल जूस जब इस पर वर्क करता है तो बाइल जूस की हेल्प से ये ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेशन नहीं करवा रहा है किसी भी तरीका, सिर्फ ये इसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर कर स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। सो इसकी वजह से इसका केमिकल डाइजेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ओके। ओके, सो बेसिकली हमने देखा कि माउथ में क्या होगा, स्टार्च का डाइजेशन होगा, ओके। फिर स्टमक में क्या होगा, इन स्टमक प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे और फैट्स डाइजेस्ट होंगे, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रोटीन्स फर्दर डाइजेस्ट होंगे, मतलब पेप्टोन्स डाइजेस्ट होंगे। लेट्स टेक द न्यू शीट।
स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन्स डाइजेस्ट होंगे। पेप्टोन्स क्या है, आपके प्रोटीन्स के छोटे मॉलिक्यूल है। स्टार्च डाइजेस्ट होगा और ज़्यादा फर्दर डाइजेशन होगा स्टार्च का, और फैट्स और ज़्यादा डाइजेस्ट होंगे। तो इस तरीके से 3 जगह हम क्या कर रहे हैं, हमारा केमिकल डाइजेशन पूरा कर रहे हैं, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब ये देखते हैं कि डाइजेशन के बाद कौन सा मॉलिक्यूल क्या बनता है। जैसे स्टार्च, स्टार्च क्या बना, स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू मतलब माउथ में जब स्टार्च का डाइजेशन हुआ तो वो क्या बना वहाँ पर, माल्टोज। माल्टोज इज़ शुगर, स्मॉल शुगर। ओके, फिर उसके बाद प्रोटीन क्या बना, प्रोटीन का जब डाइजेशन हुआ तो प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स। क्या बन गया वो, पेप्टोन्स। और फाइनली ये पेप्टोन्स क्या बन जाएंगे, एमिनो एसिड्स बनेंगे, और छोटे डाइजेशन होंगे और अमीनो एसिड्स बनेंगे। फाइन, फिर उसके बाद हमने देखा फैट्स। फैट्स डाइजेस्ट होकर क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स और क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बनते हैं। अब एक इतना यहाँ तक आप लोगों का अभी फिनिश करते हैं। इसके बाद में एक समरी लेक्चर सेम टॉपिक पर वापस लूँगी विथ योर कंप्लीट लाइक प्रॉपर नोट्स, ऐसे कि आप लोग उसको अब ठीक से एक बार सम अप कर सको उस वे में। इसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन बचेगा, एसिमिलेशन बचेगा एंड डाइजेशन। दिस 3 आर द शॉर्ट टॉपिक्स, वो एक बार में हो जाएंगे। फाइन, if there are any queries, any doubts regarding this lecture, you can ask me, and I am going to give you somewhat brief explanation over this afterwards. Okay.